ఇది इसी हेल्थ एंड मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो नॉन टीचिंग डॉक्टर्स है उनकी उम्र को जो है सो बढ़ाया नहीं गया, जबकि हमारे पड़ोस के जो रियासतें हैं वहाँ पर जो है सो एम्प्लॉइज़ की उम्रें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु श्री चिन्नाजीर स्वामी की मौजूदगी और खुसूसी पूजा के बाद अपने हल्के असेंबली इंतखाब गजवेल में कोंडा पाचम्मा सागर में पंप के जरिए पानी छोड़ने की रस्म अंजाम दी। चीफ मिनिस्टर की एहलिया भी इस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने भी खुसूसी पूजा की। बादशाह चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई मौजे अरवली और मरकुक में रेतु वेदिका का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी, वज़ीर हिंदू वक़ाफ़ व जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार, सीनियर अहदेदारों के अलावा अरकान असेंबली और कौंसिल की बड़ी तादाद थी। వందలాది పంపు సెట్లు, ఇది 10th లిఫ్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 10th లెగ్. అంటే ఇంతకుముందు 9 లిఫ్టులు దాటుకొని 10th లిఫ్ట్ కింద కొండపోచమ్మ సాగర్లోకి జలాలు ఈరోజు ప్రవహించింది. అందరికన్నా ముందు నేను అతి ఎక్కువగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలిపేది అది ఏ ప్రాంతమన్నా కావచ్చు, కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే కొండపోచమ్మ సాగర్ వరకు కూడా ఎవరైతే ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోయి నిర్వాసితులైనరో వారి త్యాగాలు వెలకట్టలేనటువంటివి. వారందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను. పూర్తి స్థాయి ధన్యవాదాలు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారి త్యాగం వల్లనే ఈరోజు లక్షలాది ఎకరాల ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు నీళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. పర్టికులర్లీ ఈ ప్రాజెక్టులో మామిడియాల, బైలంపూరు, తానేదారపల్లి అనే 3 గ్రామాలు సంపూర్ణంగా దీనిలో సబ్మర్జ్ కావడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, జిల్లా మంత్రి హరీష్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి రిహాబిలిటేషన్ కాలనీ కూడా వాళ్ళకి నిర్మాణం చేసినారు. తునికి బల్లారం పోతే అసలు కొత్త పట్టణమే నిర్మించి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇళ్ళలాగా అవి అద్భుతంగా కనపడతా ఉంది. ఆ తృప్తి ఉంది. నేను వాళ్ళకు ఒక మాట ఇచ్చున్నాను, మీ అందరి పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే విధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ, నాన్ పొల్యూటింగ్ ఇండస్ట్రీ మీ ప్రాంతంలో పెట్టిస్తామని చెప్పినాం. అక్కనే మినిస్టర్ గారు, కలెక్టర్ గారు అంతా కూడా సైట్ కూడా చూసి పెట్టినారు. 100-200 ఎకర్స్ ల్యాండ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రారంభించబోయే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ SEZలో తప్పకుండా వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయబడతాయి. అదేవిధంగా గజ్వేల్ ప్రాంతంలో మంత్రి గారు, మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు పలు దఫాలు చర్చలు చేసి ప్రజలు కూడా కోరుకొని మరొక ప్రత్యామ్నాయ గజ్వేల్ పట్టణం ఆవిర్భావం అవుతా ఉంది. 6000 పైచిలకు ఇల్లు నిర్మాణం వివిధ దశలలో ఉన్నవి. 600 ఎకరాల ప్లేస్లో జరుగుతూ ఉంది. అది గజ్వేల్ పట్టణానికి ప్రతిసృష్టి. న్యూ గజ్వేల్ టౌన్, న్యూ టౌన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు గజ్వేల్ టౌన్. సో అట్లాంటి దాంట్లో కూడా అన్ని కేర్ తీసుకొని అద్భుతమైనటువంటి నూతన పట్టణం అన్ని సకల వసతులతో రాబోతా ఉంది. మా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, వారి టీంకి, జిల్లా యంత్రాంగానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. విశేషం కృషి చేసి నిర్వాసితుల కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार बल्दी डिवीजन में आलूदा पानी की शिकायत पर इलाके का दौरा किया और बताया कि 10 लाख रुपए के मसारिफ से ड्रेनेज लाइन की तब्दीली का तखमीना बनाया गया है और ई टेंडर के जरिए इस काम की जल्द से जल्द तकमील कर दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत को भी बहुत जल्द इस तरह दूर कर लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ड्रेनेज की दूसरी बड़ी पाइपलाइन नस्ब की जाएगी। उनके दौरे के मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान, सरगर्म मजलिस कायदीन और बल्दिया के अहदेदार भी उनके हमरा थे। अहमद पाशा खादरी ने आज दोबारा रबीलपुर नाले के काम का मायना किया, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के साथ उन्होंने 2 दिन कबल मायना किया था। यहाँ नाले की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। याकूतपुर असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में SW ट्रेन का एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। कई दिनों से पानी भर के मेन होलों से ओवरफ्लो हो रहा था।
मुसलसल शिकायत पे कॉर्पोरेटर साहब वाजिद अली खान साहब जाके एस्टीमेट बनाए, करीब 10 लाख का एक एस्टीमेट बना MP2 पाइप का। जो पाइप पड़ा हुआ है उससे बड़े साइज़ का है वो पाइप का टेंडर पीर के दिन टेंडर है, और दूसरे दिन टेंडर के दूसरे दिन काम शुरू करेंगे। बलिया के इंजीनियर्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये इच्छुक है बताए काम शुरू करने का। मेरा ये 10 लाख के करीब की लागत है एस्टीमेट की। ये पूरे जहाँ पानी रुकावट हो रही वहाँ पूरे पाइपा डाल के नई बोरी बना रही। इंशाल्लाह शिकायत दूर हो जाएंगी, हमेशा के लिए सहूलत हो जाएंगी। ये पानी भरने से कुछ नलों में भी मैला पानी आ रहा है, फिर ड्रेनेज की लाइन को भी इसके बाद चेक करेंगे। ये पानी की वैसे ही सब हो रहा है, ये मोरी बन जाने के बाद ड्रेनेज की अगर शिकायत बरकरार रही तो उसकी लाइन को भी चेंज करेंगे, नहीं रही तो ड्रेनेज की लाइनों को फिर एक मरतबा फुल थ्रो साफ़ करके उसको भी छोड़ेंगे, ताकि नलों में पानी मैला नहीं आना इसकी वजह से। बल्कि बड़ा ये काम मंजूरा काम है, टेंडर में है, और पीर के दिन टेंडर ओपन होगा, मंगल के दिन काम शुरू करने का इंजीनियरों ने वादा किया। कॉर्पोरेटर साहब के साथ मकामी मजलिस के लोगों के साथ यहाँ दौरा किए और तमाम लोगों को इसकी इत्तला दिए चंद्रा नगर इलाके में, और इंशाल्लाह पीर को टेंडर होने के बाद मंगल को काम का आगाज़ होगा। काम शुरू होने के बाद भी एक बार आके हम लोग काम के दौरान भी आके इसका मुआयना करेंगे, देखेंगे कैसा हो रहा है काम। शुक्रिया। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली म्यूनसिपलिटी को नए ट्रैक्टर्स हवाले किए। बाकायदा उन्होंने मानसून के पेश नज़र किसानों में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर शेवल्ला के रुकन असम्बली के यादैया, मंडल प्रजा परिषद की सदनशीन विजय लक्ष्मी रेड्डी और दूसरे भी मौजूद हैं। कोरोना वायरस के चलते अवामी शऊर की बेदारी की एक मुहिम का डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने इफ्तिताह किया। इस मुहिम में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद शरीक थी। डिप्टी मेयर ने आवाम से अपील की कि वो समाजी फासले के बशमूल कोविड-19 के तहत हुकूमत की तरफ से मौलाना गाइडलाइंस का एहतराम करें और उस पर अमल करें। लोगों में मास्क, साबुन और दूसरी अशिया मुफ्त तकसीम की गई और मोबाइल यूनिट के जरिए लोगों के टेस्ट भी किए गए। हैदराबाद की खदीम दीनी दरगाह जामिया निजामिया ने हुकूमत की तहदीदात के बरखिलाफ नमाज जुमा की मसाजिद में अदागी को गैर शरई करार दिया है। एक इस्तफ्सार के जवाब में मुफ्ती नजीमुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जुमा की बजाय अपने अपने घरों में तन्हा नमाज ज़ोहर अदा करें और यही हुक्म शरई है। मुफ्ती नजीमुद्दीन ने कहा कि यही हुक्म ईदैन के लिए भी है और हुकूमत की पाबंदी के खत्म तक घरों में ही नमाज अदा की जानी चाहिए। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के पंटपहाड़ मंडल में किसानों से मुलाकात की और आपाशी के नए निजाम पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मानसून के पेश नजर हुकूमत किसानों के मफादात का ख्याल रखेगी। मजलिस रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की इमा पर आजमपुरा डिवीजन के तहत मूसी नदी की साफ सफाई के काम का आगाज किया गया। ये काम फरत नगर था आजमपुरा और आजमपुरा रोड अंडर ब्रिज से चादरघाट के दरमियान बहने वाले नाले में जारी है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने जीएचएमसी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका, असिस्टेंट इंजीनियर वेणुगोपाल, वर्ष इंस्पेक्टर अहमद और मजलिस के कारकुनों के हमरा इस काम का मायना किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मूसी नदी की साफ सफाई के लिए भारी फंड जारी किए और इसके लिए सुधीर रेड्डी के जेर क़यादत एक अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने अबू सईद कॉलोनी संतोष नगर में लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर और मजलिस के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिस की तरफ से ईद से कबल और ईद के बाद भी गरीबों की मदद का काम जारी है। बोयनपल्ली के बाबूजी नगर में गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता आसपास की तकरीबन 20 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। मकामी फायर इंजन को तलब किया गया जिसने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस बोयनपल्ली मसरूफ तहकीकात है। इसी दौरान रियासती वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने इत्तला मिलने पर बापूजी नगर का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। वज़ीर लेबर की अहलिया कल्पना रेड्डी ने फिलफोर इमदाद के तौर पर मुतासरीन को फीकस 5,000 रुपये की नकद रकम अपनी तरफ से अदा की, जो कि जुमला 1 लाख रुपए होते हैं।
गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेकर गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर सीधा सवाल दागा है। वो जानना चाहते हैं कि कोविड-19 के चलते मुल्क बिलखुसूस रियासत में नाफिज पाबंदियां गणेश उत्सव तक बरकरार रहेंगी या नहीं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से गणेश की मूर्तियों की तैयारियों की इजाजत देने की मांग भी की और कहा कि इस काम से हजारों लोग वाबस्ता हैं और उनका गुजर बसर इसी पर होता है। राजा सिंह ने कहा कि बेहतर होगा कि हुकूमत गणेश की मूर्तियों की तैयारियों के सिलसिले में गाइडलाइंस जल्द से जल्द जारी करे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मगरबी बंगाल के माइग्रेंट लेबर के एक और जत्थे की उनके आबाई मुकाम को वापसी अमल में आई। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने फखरे मिल्लत फ्लाईओवर ब्रिज के पास एक खुसूसी बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मगरबी बंगाल के सलामपुरे से ताल्लुक रखने वाले इन तारिकीन वतन ने बैरिस्टर ओवैसी से उनके जज्बे खैर सिगाली पर इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद के मीर बी राममोहन ने वजारत रेलवे के तोसी प्रोजेक्ट पर जीएसएमसी के हेडक्वार्टर्स में एक इजलास मुनक्किद किया। संगीत जंक्शन और मिट्टीगुड़े के पास किए जाने वाले तामीरी कामों का खुसूसी से इसमें तस्करा किया गया। मेयर ने कहा कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे की भरपूर मदद करेगी। इजलास में जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार, रेलवे के चीफ इंजीनियर अच्युता राव, जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद बी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी और दूसरे उद्देदार भी शरीक थे। मौसम गर्मा में बरखी के बहरान को लेकर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मौजूदा ट्रांसफार्मरों की क़ुव्वत में इजाफे, कारवान में बरखी की बार बार कटौती के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने ऐसे ट्रांसफार्मरों की निशानदेही की जिनके अतराफ फेंसिंग की फौरी जरूरत है ताकि आग लगने के वाक़यात को रोका जा सके। इजलास में डिवीजनल इंजीनियर फरहत अली के अलावा मुकामी कारपोरेटरों और नुमाइंदा कारपोरेटरों मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीमुद्दीन और दूसरे भी शरीक थे। एलबी नगर की एसओटी ने नकली बीज ट्रांसपोर्ट करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 50 लाख रुपए मालियती बीज और दूसरी अशिया जब्त की। मौके में हजरात को अहदेदारों के साथ की गई इस कार्रवाई में एम लक्ष्मी नारायण, यूसुफ बादशाह, एम दासरी सुरेश और वी बुच्ची की गिरफ्तारी अमल में आई। इन तमाम का ताल्लुक जिले रंगारेड्डी के कंदुकूर से था। बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण के पास के बीज का कारोबार करता था और वो नंदियाल कन्नूर से नाकिस बीज लाकर उप्पल के एक फैक्ट्री में उसे रीप्रोसेस करता था और फिर दोबारा मार्केट में ला दिया करता था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एलबी नगर सनप्रीत सिंह की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,466 नए केसेस आने के बाद हिंदुस्तान में मरीजों की तादाद 1,65,799 हो गई है और इसी मुद्दत के दौरान 175 लोगों की मौत भी हुई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र इस वबा से मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है, जहां 2,598 नए केसेस सामने आए। हिंदुस्तान ने वजाहत की कि हिंदुस्तान चीन सरहद तनाज़े के सिलसिले में वज़ीर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है और इस मसले पर हिंदुस्तान बराह रास्त चीन के साथ बातचीत करने को तरजीह देता है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मोदी और ट्रंप के दरमियान हाल ही में कोई राब्ता नहीं हुआ है। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत गुज़िश्ता अप्रैल को हुई थी। वज़ारत ख़ारिजा ने यह भी कहा कि हकीकी कंट्रोल लाइन के सिलसिले में जारी तनाज़े के हल के लिए हिंदुस्तान को अमेरिका की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत की है और चीन के मसले में सालिसी का रोल अदा करने का पेशकश किया था। मौके में मौसमियात ने शुमाल मगरबी रियासतों में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिससे उम्मीद है कि गर्मी की शदीद लपेट से मुतासरा रियासतों में रहने वालों को कुछ राहत मिलेगी। दूसरी तरफ मौके में मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि आइंदा 4 दिन के दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री से ही कम रहेगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि 1 जून को जनूबी रियासत केरला में मानसून टकरा जाएगा। अभी भी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं दिल्ली एनसीआर में भी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में, और तेज हवाएं भी चल सकती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की। तो और ये मान के चलें अगले यदि 4 दिन की बात करें तो तापमान 40 से नीचे ही रहने वाला है और राहत रहेगी, हीट वेव की कोई संभावना नहीं है और उसके बाद में थोड़ी सी फिर तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी।
1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून आ जाएगा केरला में। और अभी की जो फिलहाल स्थिति है, अभी तो अंडमान निकोबार वगैरह में तो आ ही चुका है पहले से ही वो, तो वहां आ जाएगा और अच्छी खासी वर्षा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी का आज रायपुर में देहांत हो गया। बताया जाता है कि इमली के बीच हलक में फंस जाने के बाद उन्हें सांस लेने में सख्त तकलीफ थी, जिस पर उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया गया था। वो 74 बरस के थे। अजीत जोगी रियासत छत्तीसगढ़ की तश्कील के बाद 2000 से लेकर 2003 तक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे थे। 2016 में कांग्रेस से राजनीति के बाद उन्होंने अपनी नई जमात जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली थी। दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है। अब तक इससे मुतासर होने वालों की तादाद 58 लाख हो चुकी है, जबकि 3,60,000 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। आज सुबह जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में इससे मुतासर होने वालों की तादाद 17,21,472 बताई गई है, जबकि 1,01,573 अफराद फौत हो चुके हैं। मरीजों के एतबार से ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है, जबकि बरतानिया हनुस मरने वालों के एतबार से दूसरे नंबर पर है। 31 मई को चौथे मरहले के लॉकडाउन के अख्ताम के बाद नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मुस्तकबिल के इक़दाम का अख्तियार दे देगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से माहिरीन पर मुश्तमिल 2 पैनलों ने लॉकडाउन के चौथे मरहले के बाद उसमें मज़ीद तोसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता शदीद तौर पर मुतासर इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार देते हुए वहाँ पाबंदियाँ लगा दी जा सकती हैं। मरकज़ का ख्याल है कि स्कूलों, कॉलेजों, मजहबी मकामात और सिनेमा घरों को मज़ीद मुद्दत के लिए बंद रखा जाए। बैरूनी सफ़र पर भी पाबंदियाँ बरकरार रहने का इम्कान है और बैरूनी परवाजें जुलाई से पहले शुरू नहीं हो सकेंगी। शहर हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के देरीना लॉकडाउन के चलते समाज में मौजूद दीगर सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बंद करते हुए जहां सिर्फ सरकारी दवाखानों में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों का चमत्कारी इलाज किया जा रहा है और बिना वैक्सीन के कई लोग शिफायाब भी हो रहे हैं। ऐसे माहौल में आज इंदिरानगर, भोलकपुर, मुशीराबाद के साकिन पी लोकेश्वर राव ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस पहुंचकर अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि हुकूमत जो भी कर रही है वो करे, लेकिन दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी इजाज़त दे कि वो भी मरीजों का इलाज करने के लिए अब अपने अपने दवाखाने खोल लें, जैसे कि पहले वो इलाज किया करते थे। और आधे से ज़्यादा मरीज बिना कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को देखे के अच्छे भी हो जाया करते थे। समाज में कुछ लोग यूनानी पर, कुछ लोग होम्योपैथी वगैरह इलाज पर भरोसा करते आ रहे हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। लिहाजा फ़ौरन हुकूमत इस जानिब तवज्जो देते हुए परेशान हाल आवाम की मदद को जहन में रखकर दूसरे तरीक़े इलाज के दवाखानों को भी बहाल करे। मेरा नाम पी लोकेश्वर राव है। मैं इंदिरा नगर, भोलकपुर, मुशीराबाद से आया हूँ। अभी कोरोना के वजह से पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरा बंद, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, शॉप्स पूरा बंद था। अभी एलोपैथी हॉस्पिटल खुला रख के सब जनों को ट्रीटमेंट कर रहे थोड़ा बहुत। अभी होम्योपैथी डिस्पेंसरी जो है बिल्कुल नहीं खोल रहे। हम लोग गरीब लोग होम्योपैथी डिस्पेंसरी से अभी तक ट्रीटमेंट लिए तो हमारा को जल्दी अच्छा होता। हम लोगों को होम्योपैथी के बहुत दवा यूज़ करते हम। अभी कोरोना का वजह से होम्योपैथी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी नहीं खोल रहे। हमारे को जो है बाहर बता लेना बोले तो परसों होम्यो हमारा मिसेस को जॉइंट पेन्स और फुल हेडेक हो रहा है 1 महीने से। कहीं भी होम्योपैथी गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला नहीं है। प्राइवेट होम्योपैथी का मेडिकल शॉप को गए तो उन्हें 1 महीने मेडिसिन को 1500 रुपये होते बोले तो हम लोग रिटर्न आ गए। उतना पैसा हम लोगों का नहीं है। हमारा छोटा सा जीराक्स शॉप है, हमारा खाने के भी पैसे नहीं हम लोगों को। वो 1500 लगा के कहाँ से दवा लेना पड़ता। इसलिए हम लोग क्या करें, ह्यूमन राइट कमिश्नर को 11 तारीख ये महीने 11 तारीख के दिन पिटिशन दिए थे गवर्नमेंट होम्यो डिस्पेंसरी खोलने के लिए। आप लोग ऑर्डर दे दिए साहब बोल के बोले तो साहब इमीडिएटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ तेलंगाना डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए, इमीडिएटली एक्शन करके होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोलो बोल के पेपर में भी आया। मगर अभी तक आज 29 है, साहब 12 तारीख दिया ऑर्डर, अब तक कौन सा भी गवर्नमेंट होम्यो डिस्पेंसरी नहीं खोल रहा है। हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा। हमारे मिसेस को देखे तो रात भर 1 महीने से रात भर नींद में, सिर में दर्द बोल के तड़प रहे हैं उन्हें। अभी फिर रिव्यू पिटिशन डालने आया। अब तो भी ये मेरा तकलीफ़ अकेले का नहीं है, बहुत गरीब पब्लिक के तकलीफ़ समझ के तेलंगाना गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी को
तुरंत खोलना चाहिए। आप लोग आर्डर दे दीजिए। और जो है एलोपैथी डॉक्टर मेडिसिन दे रहे, पेशेंट आए हैं तो वो लोगों को नहीं आया सो कोरोना, होम्योपैथिक वाले का आ रहे क्या, वो लोग कहीं को नहीं खोल रहे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोग गरीब कैसे दवा लेना, जल्दी खोलना बोल के हम। कौन से एरिया में? हमारा देखो मुशीराबाद में रहता, हाँ मुशीराबाद में होमियो डिस्पेंसरी है जो गवर्नमेंट स्कूल के बाजू के। पूरे होम्योपैथिक खोलो बोल के। हाँ पूरे होम्योपैथी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पूरे खोलना, खोल के गरीब को हेल्प करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। रियासत तेलंगाना के एक मशहूर हमारंगी समाजी खिदमतगार वरावरा राव की धर्मपत्नी हेमलता और उनकी दुख्तर नेक अख्तर पवना आज मीडिया के रूबरू आकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि लॉकडाउन के चलते जहां सैकड़ों समाजी खिदमतगार अवाम की मदद से जुड़े हुए हैं, वहीं टीआरएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सियासी लीडरों को जेलों में कैद करके रखा हुआ है और अवाम की मदद करने से उन्हें महरूम कर दिया है। लिहाजा हुकूमत से फौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए जेलों में महरूस सभी सियासी लीडरों की रिहाई अमल में लाने का इन्होंने मुतालबा किया ताकि वो भी अवाम की खिदमत से जुड़ सकें। तेलंगाना मेडिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ए खान ने आज अपने एक सहाफती बयान जारी करते हुए बतलाया कि रियासत तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता कई साल से मुंतज़िर हैं कि हुस्न खिदमात वजीफ़ा पर सुबुदोशी की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी जाए, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बास पड़ोसी रियासतों में हुस्न खिदमात वजीफ़ा पर सुबुदोशी की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 49 साल, 60 साल, 62 साल और यहाँ तक के 65 सालों तक कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के साबिक़ा गवर्नर ने 20 जून 2019 को एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए तदरीसी टीचिंग फैकल्टी, महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद में खिदमात अंजाम देने वाले एलोपैथी डॉक्टर्स के लिए हुस्न खिदमात वजीफ़ा पर सुबुदोशी की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी थी, जबकि गैर तदरीसी एलोपैथी डॉक्टर्स की महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद और महकमे आयुष में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स के लिए हुस्न खिदमात वजीफ़ा पर सुबुदोशी की उम्र 58 साल ही बरकरार रखी गई है। लिहाजा अभी हुकूमत से इन लोगों ने गुजारिश की है कि तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर इस सिलसिले में फ़ौरन अहकाम जारी करें तो मुलाजिमीन सरकार इसको हुकूमत की जानिब से दिया गया तोहफा तस्वुर करेंगे और ममनून मशकूर रहेंगे। मैं डॉक्टर ए खान, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट मेडिकल जॉइंट एक्शन कमेटी एम्प्लॉय सर्विस एसोसिएशन की जानिब से हम हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर सेहत जनाब ईटला राजेंद्र साहब से हमारी मुलाकात हुई। एक वफ़द उनसे मुलाकात किया। आज उस वफ़द में हमारे सदर एसोसिएशन के जनाब डॉक्टर पी सुधाकर साहब भी मौजूद थे। तो हमने उनको एक दरख्वास्त और अपील ये की है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तिब्बी अमला खिदमत अंजाम दे रहा है, उनकी उसने खिदमत पर सुबुदोश वजीफ़े पे सुबुदोश की जो उम्र है वो टीचिंग डॉक्टर जो फैकल्टी है उनकी जो है सो गुज़िश्ता साल एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 58 साल से 65 साल कर दी गई। लेकिन इसी हेल्थ एंड मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो नॉन टीचिंग डॉक्टर्स हैं उनकी उम्र को जो है सो बढ़ाया नहीं गया, जबकि हमारे पड़ोस के जो रियासतें हैं वहाँ पर जो है सो एम्प्लॉइज़ की उम्रें जो है सो वजीफ़े पे संतोष होने की उम्रें बढ़ाई गई हैं। और CGHS में भी जो है सो बाज़ जगह 62 साल है, बाज़ जगह 65 साल कर दी गई है। अब हमारे वज़ीर आला जनाब KCR साहब वादा किए थे कि एम्प्लॉइज़ को जो है सो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के लिए हम एम्प्लॉइज़ बेचैनी से मुंतज़िर हैं कि जो है जल्द से जल्द वो उम्र बढ़ाएंगे। लेकिन ये कोरोना जो महलिक मर्ज़ का वबाई मर्ज़ का जो प्रॉब्लम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले जैसे नॉन टीचिंग डॉक्टर्स है जो अपनी जानों पर खेलते हुए जो है सो आवाम की सेहत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो है सो रात दिन मेहनत करते जा रहे हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह से वो लोग काम कर रहे हैं इस जंग में। तो हमारी एसोसिएशन की जानिब से यही अपील है कि जो तेलंगाना फॉर्मेशन के डे के दिन जो 2 जून को आने वाला है, KCR साहब से हम अदमन गुजारिश करते हैं कि हम डॉक्टर्स को, एम्प्लॉइज़ को जो है सो तोहफे के तौर पर जो है सो उम्र बढ़ाकर
रिटायरमेंट की लाइफ उम्र बढ़ाकर जो है सो 60 साल या 61 साल करें, यानी तो टीचिंग डॉक्टर्स की जिस तरह से 65 साल उम्र किए हैं वो 65 साल करने के लिए हम उनसे अदब गुजारिश करते हैं। खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस अब आवाम के साथ साथ महकमे पुलिस के ओहदेदारों को भी पहचानना शुरू कर चुका है। हालिया कुछ हलाकतों के बाद शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक होमगार्ड के भी कोरोना पॉजिटिव आने की आज खबर मिली है, लिहाजा उसे फौरन गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए उसके घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस मौके पर आज वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास और आसिफ नगर के ACP शिव मारुति ने पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए सारे PS को सैनिटाइज करवाया और सभी ओहदेदारों को माहौल में इस वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर से रोशनास भी करवाया। तेलंगाना के मशहूर इलाके जहीराबाद की मूसा कॉलोनी का साकिन एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव आज साबित होने की इत्तला मिली है, लिहाजा इस मौके पर फौरन वहां के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इलाके का दौरा करते हुए मुतासिरा को दवाखाने में भर्ती करवाया और सारे ही इलाके को रेड जोन बनाकर सील करवा दिया। साथ ही जहीराबाद की आवाम से गुजारिश भी की कि कोई भी उस इलाके की जानिब ना जाए और ना ही इस मरज के फैलने का सबब बने और सभी लोग इस वायरस भरे माहौल को साफ सुथरा बनाने में इंतजामिया का साथ दे। జహీరాబాద్ పట్టణంలో మూసనగర్ నందు ఒక పాజిటివ్ కరోనా కోవిడ్-19 కేసు వచ్చింది కాబట్టి పట్టణ ప్రజలందరూ సహకరించి ఈ అలర్ట్గా ఉంటూ ఈ ఏరియాను కంటైన్మెంట్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది, రెడ్ జోన్ కింద। కాబట్టి పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఏరియాకు రాకుండా ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటూ సహకరించండి। మీకు కావాల్సిన నిత్యావసర వస్తువులు కానీ మిగతా ఐటమ్స్ ఏమున్నా కూడా మా మున్సిపల్ సిబ్బంది, రెవెన్యూ సిబ్బంది సహకరించండి। शहर हैदराबाद के कारवान डिवीजन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर जे स्वार्थ ने आज जियागुड़ा के कॉरपोरेटर मित्र कृष्णा को मेहमान खुसूसी बनाकर मच्छरों के खिलाफ मुहिम कायम करते हुए अवामी शऊर उजागर करने का एक प्रोग्राम रखा, जिसमें लोगों को समझाया गया कि अनकरीब बारिश का मौसम आने वाला है, लिहाजा सारे ही मोहल्ले जात में साफ सुथराई के जरिए मच्छरों की अफजाइश को रोकना ज़रूरी है ताकि इनके ज़रिए से फैलने वाली बीमारियों से आवाम महफूज रह सके। लिहाजा अब हर शहरी का ये फरीज़ा बन गया है कि वो हर इतवार को कम से कम एक दिन कुछ वक्त निकालकर अपने अपने घरों में जमा होकर मैला हो जाने वाले पानियों की साफ सफाई की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ऐसे ही पानियों में मच्छर अंडे देकर अपनी अफजाइश को आगे बढ़ाते हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने तयक़ुन दिया है कि वह अपने सभी एरिया व सभा मेंबर्स को हरकत में लाते हुए डिवीजन के 50 मोहल्ले जात के लोगों में ये एहतियाती तदाबीर पहुंचाएंगे। कॉरपोरेशन एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के जानिब से आदरणीय हमारे DHMC डिप्टी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, चीफ एंटोमोलॉजी आदरणीय लक्ष्मण राव जी और हमारे AE कयूम जी जान के इस नेतृत्व में आज हम जियागुड़े के क्षेत्र में केसरी हनुमान के प्रांगण में आज डेमो के द्वारा आवाम को बताना चाह रहे हैं कि आने वाले बरसात के महीने में जो हम मच्छरों से जो पीड़ित होते, मच्छरों के द्वारा आने वाले जो वायरस है, जिस तरह की डेंगू है, मलेरिया है, कई प्रकार के बीमारियों का हम शिकार बन सकते, तो इसके लिए हम पहले ही चौकस होने के लिए आदरणीय DMC मैडम के नेतृत्व में एंटोमोलॉजी एंड सैनिटाइजेशन के डिपार्टमेंट के सौजन्य से हम लोग पूरे पब्लिक को आगाह करना चाह रहे कि आप सतत रहे। आने वाले समय में अपने अपने घरों में जो मच्छरों का जो उत्पादन होता, जन्म होता, पैदाश होती, उसको हम किस तरह उसको हम लोग रोक सकते, इस मकसद को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके आज हम लोग पूरे लोग डिपार्टमेंट आवाम को आगाह करते हुए पाम्पलेन के द्वारा घर घर में जो भूल चूक होती, जो हमारे से गलतियों की वजह से जो हमारे आज यहाँ पर सामने रहे, जो
लार्वा के दशा में, वो जो पैदाशी दशा में जो हमारे पास हमारे आंखों के सामने दिखते, जैसा कि हम पानी का जो रख देते जहाँ पर भी, वो टब में हो या नहीं तो कूलर में हो, या कई प्रकार के जो पानी बचा हुआ कुछ और है तो रख देते, उसके ऊपर नज़रअंदाज नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरों का जन्म होता, पैदाश होता, वो लाखों की संख्या में जाके हमारे घर में ही हमारे लिए मलेरिया का जो पैदाश हो रहा, उसके ऊपर हम नज़रअंदाज नहीं देखने की वजह से ही हम मलेरिया का शिकार होने वाले हैं। इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट का जो प्रयास है, जो उनका जो सपना है, वो साकार करने के लिए हम लोग, जो मेरे ऊपर आज हमारे मैडम ने कारपोरेटर होने के नाते मुझे बुलाया कि जियागुड़ा पहले ही कोरोना से परेशान है, आने वाला ऐसा ना हो कि फिर ये डेंगू और मलेरिया का शिकार ना बने, तो इसीलिए मुझे बुला के आगाज़ किया कि अपने बस्ती के 50 बस्तियों को आप अलर्ट कर दीजिए और घर घर को जाके इसका जो भी है उनको एक्सप्लेन करें। मैं उनके आदेश के अनुसार मेरे वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और जितने भी 50 बस्तियों के जितने भी कमेटियां, उनको भी आगाज़ करते हुए जो हमारा जो जीएचएमसी का कॉन्सेप्ट है उसको बरकरार करते हुए, जो मैडम का जो संदेश है, जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट का जो आदेश है, उसको घर घर पहुंचाते हुए ये जो मलेरिया का जो पैदाश को रोकने के लिए हम सब मिलके उसका प्रयास करेंगे। और मैडम तफसील से जो मलेरिया को रोकने के लिए डिपार्टमेंट वाइज किस तरह फॉगिंग करना, किस तरह करना चाहिए, उसके ऊपर मैं इस मंच के द्वारा मैडम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नदी से जो मच्छर पैदा हो रहे उसके लिए एक डोम का निर्माण करके 1-2 डोम की सहायता करें तो हम डोम के द्वारा, क्योंकि पानी आए जब पानी में उतरना मुश्किल होता, मैं आपके द्वारा मैडम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए जो पुराना पुल और हमारा गणेश घाट के द्वारा भी मच्छर बहुत आ रहे, एक तरफ तो घर का मामला है, हम लोग से घर के अंदर करेंगे, लेकिन नदी का मामला जहाँ पर है, जहाँ पर जन्म होता, उसके रुकावट के लिए मैं आपके सबके तरफ से मैं हाथ जोड़ से विलंबना कर रहा हूँ कि ड्रोन का बंदोबस्त करें, जिसके द्वारा ड्रोन के स्प्रे के द्वारा हम लोग मच्छरों का भी रुकावट कर सकते। मैं आपके जरिए फिर एक बार मैं हमारे आदरणीय डीएसएफ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ड्रोन का भी प्रबंध करें। धन्यवाद। जय तेलंगाना। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप